Hello, friends. So, we are in the second last lecture of our series. So, today I will discuss three topics: Panchayati Raj institutions, urban local bodies, and the subordinate courts. And one more lecture I will take on the miscellaneous topics. ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ miscellaneous issues को discuss करने वाला हूँ. ठीक है, तो be with me. So, Panchayati Raj is a local bodies. ठीक है, और at present they are the constitutional bodies and given the constitutional status through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Okay, I just want to give you some background. For example, I just want to tell you that Lord Ripon is considered as the father of local government in India. Lord Ripon, और रिपन का टाइम पता है सबको? 1882 1884 he was Governor General in India. Okay, just after the Lytton and just before the Dufferin. So Lord Ripon is considered as the father of local government in India. Okay, at the same time, the constitutional provision, Article 40, is included as an DPSP for self-sufficient villages. Self-sufficient villages. Okay. So Panchayati Raj institutions are the constitutional body, and its constitutionalism created through the 73rd Constitutional Amendment Act. Earlier it was not the provision, it was not constitutional mandate. Okay, it was directives for the state. Okay, let me talk about various facts. For example, the first committee which was formed, Balwant Mehta Committee. And Balwant Mehta Committee recommend for Panchayati Raj institutions. Then one more committee you have to remember, or three-tier Panchayati Raj institutions they recommend. They recommend first at the Gram Sabha level or Gram Panchayat level, then block level and at district level. ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो ये है कि सबसे पहले आपके पास में ग्राम पंचायत है, उसके बाद में आपके पास में जिला परिषद है, ठीक है, और वन मोर इज द ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट. ठीक है, ब्लॉक लेवल government, and let me see what we call this block level government. Gram Panchayat, Jila Parishad, or we call it the different place as different name. Let me tell you my Rajasthan name, Panchayat Samiti. We call it the Panchayat Samiti. Panchayat Samiti. Okay, this three level government. Ashok Mehta Committee. Why it is important? Because Ashok Mehta Committee was the committee which recommended the second tier government, two-tier government. अब just opposite to the बलवंत मेहता. तो बलवंत मेहता के बाद में जितनी भी कमेटीज हुई हैं उन्होंने 3 टियर ही बोला है और अशोक मेहता ने 2 टियर बोला है. तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. और एलएम सिंघवी कमेटी आप याद रखिए. ये हरियाणा पीसीएस में सवाल आया था एक्चुअली, इसलिए मुझे थोड़ा याद रह गया कि एलएम सिंघवी जो कमेटी है, एलएम सिंघवी जो कमेटी है, तो एलएम सिंघवी कमेटी के अंदर जो इस कमेटी ने रिकमेंड किया, उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है. तो दे रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ Panchayati Raj institutions. So remember these important facts. I just want to move on. So they told कि भाई इलेक्टेड लोग होंगे ऑल 3 टियर लेवल पे, इलेक्टेड लोग होंगे और इनको
पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई लोकल लेवल पे, ठीक है। और उन पावर्स में जैसे पंचायती राज के लिए इन्होंने पावर को रखा कहाँ, 11 शेड्यूल में, ठीक है। और 29 सब्जेक्ट्स रखे, इसमें एग्रीकल्चर था, वाटर था, सैनिटेशन था, ठीक है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर टैक्स पावर रखी गई, किन किन सब्जेक्ट्स पे पंचायत है वो टैक्स लगा सकती है अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। दिस इज द प्रोविजन दे डिड। उसके बाद मैंने कहा कि भाई तीनों लेवल पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगी और कंपलसरी होगा उनको फॉर्म करना, ठीक है। इलेक्टर्स कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे सेम एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहेंगे आपके सरपंच, ठीक है, और पंच, ठीक है। एंड उसके बाद में एक लेजिस्लेटिव बॉडी रहेगी, लेजिस्लेटिव में ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, तो ये स्ट्रक्चर बनाई गई कि लेजिस्लेचर में तो क्या आ जाएंगे, ऑल द मेंबर ऑफ, ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है ये, पर जैसे जिनसे पूछ के एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेगी वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में कौन होंगे, ऑल इलेक्टर्स। इलेक्टर्स कौन है, सो अबव 18 ईयर्स एज के जितने भी लोग उसके अंदर इलेक्टर हैं उस ग्राम पंचायत के अंदर, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और ये जो एग्जीक्यूटिव है जो ग्राम सभा की एडवाइस पे काम करेगी, उसमें आपके पास में एक सरपंच होगा और ये पंच होंगे। कहानी क्या हो रही है कि मान लीजिए कि ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। अब इस ग्राम पंचायत मान लीजिए एरिया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे वार्ड्स होंगे, यहाँ वार्ड होंगे, इनको हम पंच बोलेंगे, ठीक है। और तो जो गांव के लोग हैं वो दो लोगों के लिए वोट करेंगे, फॉर टू पीपल। एक सरपंच के लिए वो डायरेक्ट चुना जाएगा, एंड अदर जो चुना जाएगा वो किसके लिए चुना जाएगा, पंचों के लिए। और ये पंच असिस्ट करेंगे सरपंच को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो सरपंच को ये पंच ही बताएंगे, ठीक है। तो इट बिकम द, ये पंच ऐसे बन गए जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ठीक है। तो ये लोकल लेवल पे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है। इन्होंने ये प्रोविजन किया कि भाई एक काम करो, एक तो हम लोग रिजर्वेशन करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे। अब इस रिजर्वेशन में क्या था, एक था मैंडेटरी और एक था वॉलंटरी। तो जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन है ये वॉलंटरी में है, और मैंडेटरी में किसका है, विमेन, SC STs, और मिनिमम था 33%। याद रखना मैक्सिमम अभी राजस्थान के अंदर ही है, मोर देन 50%। तो मैक्स, सो मतलब मोर देन 50% जो वीमेन रिप्रेजेंटेटिव है वो राजस्थान से हैं। तो मैंडेटरी में क्या किया इन्होंने, वीमेन और ST SCs के मिनिमम 33% किया गया। उसके बाद इन्होंने मैंडेटरी प्रोविजन में क्या किया कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज इनके इलेक्शंस करवाना होगा, ठीक है। और याद रखना इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, और इसको रिमूव जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं हाई कोर्ट जज की तरह। तो SC जज की तरह रिमूव कर सकते हैं, SC जज को रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। तो अल्टीमेटली आप यही कह सकते हो कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं स्टेट हाई कोर्ट की तरह, या फिर अब स्टेट हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही आप क्या कर सकते हो, इनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पंचायत का जो टाइमिंग होगा वो 5 ईयर्स का होगा, ठीक है। पर स्टेट गवर्नमेंट्स इनको पहले भी डिसॉल्व कर सकती हैं इफ दे फाइंड इट नेसेसरीली, ठीक है। उसके बाद में पावर और फंक्शन क्या होंगे, जो भी स्टेट, देखो वैसे तो इनके पास में 11 शेड्यूल होगा, लेकिन जो भी पावर डिवॉल्व की गई है इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी फंक्शंस को ये लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइनेंस के लिए आपके पास में स्टेट फाइनेंस कमीशन है, मैं इसको अगली स्लाइड में ही लूंगा। आपके पास में
स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये क्या करेगा? रेवेन्यू का बंटवारा करेगा किसके बीच में? स्टेट के रेवेन्यू के बीच में, स्टेट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे पास में, एक चीज क्लियर रखना कि जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत, उसके हेड का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर हेड। बट जो अदर काइंड ऑफ लेवल हैं, जैसे पंचायत समिति और जिला परिषद, उनके हेड का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, उनका, लेकिन उनके मेंबर्स का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, चलो ये सब हो गया। अदर प्रोविजंस विल बी वॉलंटियरली। अब पेसा एक्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। पेसा एक्ट, तो पेसा जो एक्ट है वो 1997 में पास हुआ। थोड़ा सा जो ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल एरियाज में ये एक्ट को पास किया गया। देखो ट्राइबल एरियाज में थोड़ा सा वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, अंडर आर्टिकल 29 और 29 स्पेशली, तो हर किसी को कल्चर को प्रिजर्व करने की आज़ादी है, तो वो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, इसलिए जो विलेज, जो ये पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है और जो जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ताकि ज़्यादा ऑटोनॉमी इनको दी जाए। जो ट्राइबल एरियाज है उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। ट्राइबल एरिया दो तरह के हैं, एक है शेड्यूल 5, एक है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो कि 4 स्टेट्स के अंदर हैं, आसाम, ठीक है, मेघालय, ठीक है, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ज़्यादा जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको शेड्यूल 6 में डाला गया, और रेस्ट ऑफ इंडिया में जितनी भी ट्राइब्स होंगी उनके लिए शेड्यूल 5 बनाया गया। ठीक है, उनके लिए शेड्यूल 5 बनाया गया। अब शेड्यूल 6 के अंदर 6 के अंदर अलग प्रोविजंस हैं। तो जो पेसा एक्ट के लिए होता है वो शेड्यूल 5 के लिए होता है। तो पेसा एक्ट है वो शेड्यूल 5 के लिए है, और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। जैसे पेसा एक्ट के अंदर कोई भी जमीन अलोकेट की जाएगी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो ग्राम सभा से पूछा जाएगा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उन पे ग्राम सभा का ही क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, दूसरा, दे हैव लिटिल बिट फ्रीडम इन मेकिंग द लॉज रिलेटेड टू द देयर कस्टम्स। ठीक है, ये शेड्यूल 6 में भी है ये प्रोविजन। तो इस तरह की चीजें उसमें की गई, तो ज्यादा फ्रीडम दी गई। आप बस यही चीजें रखिए। इसमें वैसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट आप इतने सारे पॉइंट हम याद रख नहीं सकते हैं। बस याद रखिए कि मोर ऑटोनॉमी दी जाएगी तो सबसे आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, so this is about the Panchayati Raj institutions from my side. Next I will talk about the, so guys we are going to talk about urban local bodies. Urban local bodies को भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, वही रिपन वाली स्टोरी यहाँ पे है, वही ठीक है। तो ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ये दोनों, और दोनों ही टाइम में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, ये चीज याद रखिए। ठीक है, नरसिम्हा राव की क्या थी, गवर्नमेंट थी। रिमेंबर दिस थिंग गाइज। आई जस्ट वांट टू टॉक यू द सेम थिंग। इसमें भी 3 टियर ही गवर्नमेंट है, और इन तीनों का नाम क्या है, नगर पंचायत या हम नगर पालिका, नगर निगम, और इसमें हायरार्की नहीं है। और नगर निगम नहीं, नगर परिषद होगा पहले, नगर परिषद एंड नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों के लिए। एक तो इसमें क्या है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट है। जैसे वहां पे क्या हो रहा था, एक हायरार्की थी इस तरह से, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और तीनों इंटरकनेक्टेड थे। यहाँ पे जैसा मतलब शहर होगा, छोटे शहरों के लिए आप नगर पालिका बना दो, उससे जो बड़े शहर हैं उनके लिए नगर परिषद, और जो सब बहुत बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है। क्या डेफिनेशन है मेट्रोपॉलिटन शहर की, कि 1 मिलियन से ज्यादा की जिनकी आबादी है, 10 लाख से ऊपर जिनकी आबादी है, उनके लिए इन्होंने कहा कि हम लोग नगर निगम बनाएंगे। पॉपुलेशन
डेंसिटी इन पे डिपेंड होगा, और ये स्टेट डिसाइड करेंगे कि उनको किनको नगर पालिका बनाना है, किनको नगर पंचायत बनाना है, ठीक है। नाउ गाइस आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग अबाउट दिस, लाइक कि चलो हम बात करेंगे अब इसकी, कि वही चीज यहां पे हुई कि आप डायरेक्ट इलेक्टेड करिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वार्ड है वो तो डायरेक्ट इलेक्टेड है, लेकिन जो मेयर होगा, ये जो हेड होगा, उसको मेयर बोल रहे हैं, वहां पे सरपंच बोल रहे हैं, नाम से कंफ्यूज मत होना। तो जो मेयर होगा ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। ये पूरी ग्राम पंच जो जो अर्बन लोकल बॉडी है या म्युनिसिपैलिटी है वो 5 ईयर के लिए होगी, पर जो मेयर का टर्म होगा वो, हाँ ये इनडायरेक्ट वर्ड लिख रहा था मैं, और जो मेयर का जो टर्म होगा, मेयर का टर्म होगा वो 1 ईयर के लिए होगा, ये रिमेंबर रखिए। तो जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, यहां पे उनको म्युनिसिपैलिटी बोला गया। 3 तरह की म्युनिसिपैलिटी, नगर 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 क्या बोलते हैं, पालिका, नगर परिषद एंड नगर निगम। और ये डिपेंड करती थी कि बड़े शहर छोटे शहरों के लिए नगर पालिका, उससे बड़े शहरों के लिए नगर निगम, और उससे भी बड़े शहरों के लिए उससे बड़े शहरों के लिए नगर परिषद, और उससे भी बड़े शहरों के लिए नगर निगम। फिर मैंने बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनके, उसके बाद में उन वार्ड मेंबर्स में से एक मेयर चुना जाएगा एवरी ईयर, और जो टेन्योर है इस नगर परिषद का, या नगर पालिका का या नगर निगम का, वो 5 ईयर का होगा। 5 ईयर के बाद में वहां पे चुनाव होंगे। वही सिमिलर है कि यहाँ पे भी SC STs का क्या होगा, SC STs का रिजर्वेशन होगा, वीमेन का रिजर्वेशन होगा, और वही 33% का रिजर्वेशन यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई, और यहाँ पे भी स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई, जो हमने पिछले लेक्चर में पंचायती राज में देख लिया है। आगे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 2 चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग होंगी, जो मैं यहाँ पे बेटा आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा, और वो 2 चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी है आपके पास में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करूंगा और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में क्या है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट आएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाली, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे आपके पास में पंचायती इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, नगर पालिकास भी आ जाएंगी, नगर परिषद भी आ जाएंगे, तो एंटायर डिस्ट्रिक्ट आएगा। ये जो प्लान है वो प्रिपेयर करती है पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही हैं। और ये अपना जो प्लान है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना, अपना जो प्लान है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी। और एक और बात याद रखना चाहिए, इसका अगर कंपोजिशन देखें तो 4/5 मेंबर इलेक्टेड होंगे और 1/5 मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। सो 1/5 मेंबर विल बी नॉमिनेटेड, ठीक है। और कौन इलेक्ट करेगा? वही म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स और पंचायती के जो मेंबर्स होंगे वो इन्हें इलेक्ट करेंगे, 4/5 मेंबर्स को। और डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाएगी। वहीं जो मेट्रोपॉलिटन है वो सिर्फ अपने शहर के लिए काम करेगी। तो मेट्रोपॉलिटन है वो उस पूरे शहर के लिए काम करेगी, डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, और इस डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी और उसे अप्रूव करवा के वहां पे इंप्लीमेंट करेगी। यहाँ पे कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे 2/3 इलेक्टेड होंगे और 1/3 नॉमिनेटेड होंगे। इतना बच्चों आपको याद रखना है, इतना बच्चों आपको याद रखना है, और ये भी क्या करेगी? प्लान को प्रिपेयर करेगी, ठीक है। याद रखना, जो 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 अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी पावर को, अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं, अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं उनकी पावर जो दी गई है वो 12th शेड्यूल में दी गई है, 12th शेड्यूल में दी गई है। और यहाँ पे 18 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। वहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स थे पंचायती राज में जो 11 शेड्यूल है, पर यहाँ पे 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो यहाँ पे गिवन है। अब अर्बन गवर्नमेंट बहुत तरह की होती है, उनको हमें समझना होगा, उन्हें हमें क्या करना होगा? देखना होगा। तो गाइज वी आर नाउ टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे
देखो अर्बन लोकल गवर्नमेंट किस तरह से होंगी, 73rd में तो क्या हो रहा है कि वहां पे बताया गया है कि ऐसे इलेक्शन होगा, ये होगा, ऐसे सरपंच चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट पे डाला गया है कि आप एक्ट के थ्रू बनाइए। तो जो बिग सिटीज होती हैं, बिग सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा और ये एक्ट के थ्रू बनेगा, ठीक है, इट विल बी क्रिएटेड बाय थ्रू एक्ट, और ये 5 साल के लिए बनता है, लेकिन इसमें जो हेड है वो मेयर होते हैं और मेयर 1 साल के लिए होते हैं। ऐसे म्युनिसिपालिटीज होती हैं वो स्मॉल सिटीज के लिए, स्मॉल सिटीज के लिए म्युनिसिपालिटीज होती हैं, ये भी एक्ट के थ्रू ही बनती हैं, ये आप याद रखिए। और अगर मान लीजिए याद रखना, जो एक्ट होगा उसमें क्या होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के टेरिटरी में है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट पास करेंगी, और अगर वो कोई यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पास करेगी। उसके बाद में नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया में क्या होता है कि कुछ एरिया होते हैं वो अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, मान लो किसी एरिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है और वो इतना डेवलप भी नहीं हुआ है कि उसे म्युनिसिपैलिटी कंसिडर किया जाए, तो उन एरियाओं को वो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो उन एरियाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सॉरी मैंने क्या कहा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स वो इतने डेवलप भी नहीं हुए कि स्टेट गवर्नमेंट को म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घोषित कर सके, इसलिए उनके लिए वो नोटिफाइड एरिया टाउन लेके आई है, जिसको सिर्फ गैजेट्स में नोटिफाइड करके भी डिक्लेयर किया जा सकता है वहां पे काम को रेगुलेट करने के लिए। टाउन एरिया कमेटी है, ये एक्ट से ही पास होगी, ये भी एक्ट से ही पास होगी, और ये छोटे टाउन्स के लिए होगी। किसके लिए होगी? छोटे, ये जहाँ छोटे शहर हैं तो यहाँ छोटे टाउन है, और यहाँ पे भी वो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन अभी म्युनिसिपैलिटी नहीं बन सकती, तो टाइम लेंगे वहां पे। नेक्स्ट आपका कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट जो बोर्ड है जिसको हम छावनी बोलते हैं या कैंट एरिया बोलते हैं, वहां पे एक्ट के थ्रू बनता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो कंटोनमेंट बोर्ड जो एक्ट है 2006 उसके अंदर ये बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। स्टेट्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, स्टेट्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही हम बात करेंगे टाउनशिप की, तो टाउनशिप भी एक्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है, छोटे टाउनों को बोला हो जाता है। एंड दिस इट इज सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे टाउनशिप की। तो टाउनशिप अगेन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, और किस लिए गवर्नमेंट? मान लीजिए कि कहीं पे पर्टिकुलर कोई एक एरिया डेवलप हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और यहाँ पे एरिया डेवलप, तो यहाँ पे जो वर्कर्स और इन सबको रहने के लिए इन्होंने क्या किया है, टाउनशिप को डेवलप किया है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई इंडस्ट्री डेवलप हुई है, तो उसमें रहने वाले वर्कर्स और उनको रहने की जगह देने के लिए, इन सब के लिए दे हैव डेवलप दिस पार्ट। उसके बाद में पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए है, और ये भी बड़े पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए है, इसे पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाता है। सो जो पोर्ट ट्रस्ट है वो टाउनशिप में पार्लियामेंट कोई एक्ट नहीं होता है, टाउनशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय द एक्ट, रेदर इट इज, ये जो एंटरप्राइजेस है वो अपने लोगों को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए जगह देती है जहाँ पे वो रह सकते हैं टाउनशिप में। और पोर्ट ट्रस्ट में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े पोर्ट को उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनको रेगुलेट करना है, तो एक्ट के थ्रू वो बनता है। स्पेशल पर्पज एजेंसी है उसके बाद में, स्पेशल पर्पज एजेंसी में क्या होता है कि स्पेशल पर्पज के लिए वो बनाई जाती है, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्लीननेस के लिए, इनके लिए वो बनाई जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट before our miscellaneous lecture, and that last part is the subordinate courts, ठीक है, that last part is subordinate courts, ठीक है।